वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज आवर 5th डे ऑफ CSET इकोनॉमिक्स सेशन। और आज हम स्पेशल क्या सीखेंगे। अभी तक हमने देखा डिमांड, मतलब हम अभी तक थे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम सोच रहे थे कि कंज्यूमर हाउ ही थिंक, उसको जहां पे यूटिलिटी ज्यादा लगती है वो ज्यादा डिमांड करता है, जहां पे यूटिलिटी कम लगती है डिमांड कम कर देता है। बट हाउ द सप्लायर थिंक्स अबाउट इट। देखिए, कोई भी मार्केट जब होता है तो दो फोर्सेस पे चलता है, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है सप्लायर। सो एक बार हमने ये देखा कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, अभी से हम देखेंगे सप्लायर कैसे बिहेव करता है। तो जब प्राइस बढ़ गई ऐसा अगर आपने सोचा तो एज अ कंज्यूमर आप बोलोगे बुरा हुआ, एज अ सप्लायर यू विल बी हैप्पी। आप सोचिए कि आपकी एक ही दिन में 2 मीटिंग्स होनी है। ओके, जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन। आपको एक फ्लैट बेचना है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में एक फ्लैट बेचना है और दोपहर में आपको एक नया फ्लैट बुक करना है। So when you are going for the meeting for the first flat where you are going to sell the flat, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, यार ज्यादा प्राइस मिलनी चाहिए, रेट ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मैं बेच रहा हूं। आफ्टर हार्डली 2-3 आवर्स व्हेन यू गो फॉर द मीटिंग ऑफ द अदर फ्लैट जो आपको खरीदना है, यू आर गोइंग टू परचेस इट, तो आप सोच रहे होते हैं, आप प्रे कर रहे हो यार कम रेट में मिल जाए कितना अच्छा होगा। सो एज अ सेलर आपका बिहेवियर ऑब्वियसली उल्टा हो जाता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई एनालिसिस के लिए। Everyone ready to go? Yes sir. Great. चलो ऐसे इंटरेक्टिव रही है, आप जितने ज्यादा आंसर्स दोगे मुझे और मजा आए। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए सप्लाई एनालिसिस। गिव इट अ थॉट। Mr. Ram, a jeweler, goes in the market to purchase a product. He always wished to have a lesser price for the product and get excited to get some discount. उसको अच्छा लगता है, let's say if he goes in a mall and if he gets some discount, या वो सब्जी भी लेने को जाता है तो क्या बोलता है, देने का भाव बोलो ना। So he's very excited when he gets some discount. But when someone asks some discount in the jewelry shop he's selling, then he gets angry. Why does it happen? The answer is very simple. In the first case, he's a buyer or consumer. But in the second scenario, he's a seller who decides how such supply in the market, how much to supply in the market at a particular price. In simple words, the seller in the is the second important pillar in the market mechanism. So market mechanism में कौन-कौन चाहिए? Purchaser, seller, both you need. The most important question of market is the supply should be equivalent to demand. Basically, supply is a flow concept and fulfillment of demand is done by the supply. Supply is a flow. आज रेट ज्यादा है, मैं ज्यादा माल सप्लाई करूंगा, रेट कम है, मैं उतना ज्यादा सप्लाई नहीं करूंगा, शायद डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कमोडिटी. A good supply condition can give encouragement to producer to produce more and economy for our country can be strengthened. Hence, in this topic, we are going to see relationship between factors of production, stock, supply. All of you are future entrepreneurs. Maybe आप खुद businessman हो या किसी का business आप चलाने वाले हैं. All will be intelligent backbone for the business, for these business houses. So you must understand the concept supply properly. तो चलिए देखते हैं कि हम क्या-क्या देखेंगे यहाँ पे. Meaning of supply, determinants of supply, expansion and contraction of supply versus increase and decrease in supply, and final elasticity of supply. So चलिए supply देखते हैं. Mr. Anil is a supplier of the milk. Every day he checks the market prices in 2-3 markets, milk markets separately, and then decides how much quantity is to be supplied in that particular market at that specific price for the day. It is supply of goods he has created. What are the things which comes into your mind about the term supply from the above example? देखिए, Mr. Anil is your client जो क्या करता है, वो मिल्क सप्लाई करता है. लेट्स से वो कहता है सर हर रोज मेरे पास लेट्स से 1000 लीटर मिल्क अवेलेबल होता है, मैं 4 मार्केट में भेज सकता हूँ. आई एम लोकेटेड, फॉर्चुनेटली आई एम लोकेटेड एट सच अ प्लेस दैट आई कैन सेंड दिस आइदर टू मार्केट ए, बी और सी और डी. तो डिसाइड करता है कि कहाँ पे मार्केट प्राइस ज्यादा है. ऑब्वियसली जहां पे प्राइस ज्यादा है वो वहां पे ज्यादा सप्लाई कर देता है. तो हमें क्या पता चला इस एग्जांपल से, सप्लाई मींस व्हाट इज ऑफर्ड एंड नॉट व्हाट एक्चुअली इज सोल्ड. सप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि क्या बेचा गया, वो तो सेल हुआ. सप्लाई मतलब मैंने कितना माल भेजा, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गुड्स आई हैव सेंट. सो सप्लाई इज नॉट व्हाट इज ऑफर्ड, व्हाट सप्लाई इज व्हाट इट इज ऑफर्ड एंड नॉट व्हाट इज सोल्ड. सप्लाई इज अ फ्लो. वो डिसाइड करता है कि आज मुझे कितना माल बेचना है, आज का रेट क्या है, उस पर वो डिसाइड करेगा. सो सप्लाई इज सिंपली अ फ्लो. टू मेक सप्लाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट इज स्टॉक. मेरे पास स्टॉक में तो माल होना चाहिए सर. अब देखिए, स्टॉक का मतलब ये नहीं होता कि फिजिकली मेरे पास ही गोडाउन में मार्केट में माल हो. बहुत बार आपको भी मालूम है कि बहुत सारे या ऑलमोस्ट सारे सप्लायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. सो व्हाट दे डू इज दे आस्क ईच अदर, भाई तेरे पास इतना माल है क्या, भेज दे. तेरे पास इतना माल है क्या, भेज दे. सो इट इज नॉट ओनली गुड्स इन गोडाउन,
इट इज गुड्स अवेलेबल फॉर मी इन द मार्केट. सो आपका सप्लाई स्टॉक पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है. सो क्या देखा हमने? सप्लाई इज व्हाट इज ऑफर्ड एंड नॉट व्हाट इज सोल्ड. सप्लाई इज अ फ्लो, अलग अलग रेट पे अलग अलग माल जाएगा, एंड फाइनली आपके पास स्टॉक होगा तभी सप्लाई हो पाएगा. तो देखिए पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं आपको. इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, लेट्स से मुझे मार्केट में प्लास्टिक चेयर्स सप्लाई करनी है, मेरी कंपनी का नाम है वीआईपी प्लास्टिक्स. तो पहले मुझे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, लाइक मटेरियल, मैन पावर, मनी, मैनेजमेंट, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. फिर मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर मेरे पास इतनी सारी चेयर्स अवेलेबल होंगी और उसमें से मैं माल सप्लाई करूंगा. सो इन दिस वे द सप्लाई कंसेप्ट मूव्स. अब देखते हैं फिर सप्लाई के लिए क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई? विल यू ट्राई दिस क्वेश्चन? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होते हैं, मतलब क्या है डिटर्मिनेंट्स? व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंसेप्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई? एनीवन वुड लाइक टू contribute something? Factors affecting supply. Correct, the factors which affect the supply. तो क्या क्या लगता है आपको, किस चीज की वजह से आपका सप्लाई आप बढ़ाओगे या कम करोगे, बताइए. Cost of production, government policy. Definitely. Taxation. Sorry, taxation. टैक्स रेट्स, करेक्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है. कभी कभी कोई प्रोडक्ट हम बंद कर देते हैं, बोलते हैं इस पे बहुत जीएसटी है. हाँ बोलो, और क्या? Price of a commodity. Price, the most important determinant is price, which motivates me or demotivates me. Price बढ़ गई, I am highly motivated. कम हो गई, I am not. Correct. और लोगों का चॉइस, राइट, वेदर कंडीशंस, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. चलिए देखते हैं. आप सोचिए ना कितनी छोटी सी बात है. हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन है, ये हम कब देखते हैं? रक्षाबंधन से 10-15 दिन पहले. ओके, दिस इज द डेट. लेकिन रक्षाबंधन से 10 दिन पहले हमारे मार्केट में चाइना से राखियां ऑलरेडी अवेलेबल हो जाती हैं. मतलब उन्होंने कितना हमारे त्योहार का स्टडी किया है, राइट. आवर फेस्टिवल्स हैज ऑलरेडी बीन एनालाइज्ड बाय देम कि अगर हमें रक्षाबंधन से 10 दिन पहले ये माल सब वहां पे होना चाहिए आपके मार्केट में, तो उनको मैन्युफैक्चर कब करना पड़ेगा, सप्लाई कब होगा, तब जाके वो माल आएगा. सो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच अफेक्ट्स द सप्लाई पॉजिटिवली और नेगेटिवली. सो देखते हैं क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है. Imagine if you are a manufacturer or seller of a pen, which 5 factors will you analyze before finalizing the quantity? आप अगर एक पेन मैन्युफैक्चरर, ड्यूरेबल कमोडिटी है, तो कितना माल सप्लाई करना है, इससे पहले आप क्या क्या चेक करोगे? लाइक आप चेक करोगे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, और कुछ. इफ यू आर अ पेन मैन्युफैक्चरर, आई वुड से प्राइस आई विल चेक फर्स्ट. सेकंड, आई विल से कि कॉम्पिटिटर्स की क्या मूव है, क्या वो भी डिस्काउंट दे रहे हैं या मुझे भी देना पड़ेगा. थर्ड हो सकता है मेरे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है क्या वो बनाने के लिए. ऑफ कोर्स सप्लाई है तो फिर होने चाहिए आइडियली. स्टॉक कितना है मेरे पास, राइट. किसी और मार्केट में प्राइस कितनी है, ये सारी चीजें मुझे देखनी पड़ेगी. सो ऑल दिस फैक्टर्स मैटर्स अ लॉट इन टेकिंग योर डिसीजन एंड कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट्स. तो क्या क्या होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई? पहला होता है प्राइस ऑफ गुड्स. एज यू नो, प्राइस बढ़ेगी, यू आर मोटिवेटेड बिकॉज आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, यू विल सप्लाई मोर. कम हो जाएगी, यू विल रिड्यूस द सप्लाई. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर मैं मिल्क सप्लाई कर सकता हूं या मैं मिल्क सप्लाई बंद कर देता हूं और चीज सप्लाई करूंगा, या मैं मिल्क का सप्लाई बंद करके लेट्स से उसका मैं कुछ पनीर बेच के बना के बेचूंगा. सो अगर उसके प्राइसेस अच्छे आ रहे तो व्हाई विल आई सप्लाई मिल्क, देन आई विल रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मिल्क. तो ये भी तो बहुत सारी कंसेप्ट, ये भी तो बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है. प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर मुझे एक पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए नेट कॉस्ट 25 रुपीज गई है और अगर मार्केट में सेलिंग प्राइस 24 है, आई विल नॉट गो फॉर इट. Maybe I will stop the production even in future अगर ऐसा ही रहा तो. So factors of production matters. State of technology, मेरे पास मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर मशीन्स है तो मैं बड़ी ऑर्डर ले सकता हूँ. आई कैन एक्सेप्ट द बिग ऑर्डर्स बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं जल्दी से जल्दी ये प्रोडक्शन करके आपको दे सकता हूँ. लाइक आप देखिए आपके कॉलेज के बाहर जो फोटोकॉपी शॉप होते हैं, जिसको हम जनरली जेरोक्स शॉप्स कहते हैं, तो जिसके पास एक ही मशीन है, जो भी पुराना मशीन है, तो वो बड़ी ऑर्डर लेता ही नहीं है. वो कहता है नहीं आपको जनरल अगर लेना है ना तो वो लीजिए, लेकिन बड़ी ऑर्डर में नहीं ले पाऊंगा. लेकिन जो लोग इक्विप्ड है, जो हर 2 साल बाद वो मशीन चेंज कर देते हैं, अपग्रेड करते हैं, वो कहते हैं आने दो, कितना आना है, मैं आपको जेरोक्स दैट इज फोटोकॉपी निकाल के दे सकता हूँ. सो टेक्नोलॉजी ऑल्सो मैटर्स. गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लाया या गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, यू आर डीमोटिवेटेड, तो शायद आप सप्लाई नहीं करोगे. अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्डर तो मैं ले लूं लेकिन मेरे पास वो बनाने के लिए तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए. अगर हम फ्यूचर ऑर्डर की बात कर रहे हैं सप्लाई की, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंड अदर फैक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, मैं माल तो बना लूंगा सर, लेकिन आपको जहां पे चाहिए मैं पहुंचा नहीं पाऊंगा. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, खराब हो जाएगा.
नेचुरल फैक्टर्स, मार्केट स्ट्रक्चर, फॉरेन पॉलिसी, सर यहाँ पे बेचने से अच्छा मैं एक्सपोर्ट कर दूं, यस दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, फैशन एक्सेट्रा. सो दीज आर ऑल द डिटर्मिनेंट्स जो डिसाइड करते हैं कि आप सप्लाई कितना करने वाले हो. तो इस तरीके से इन सब चीजों पे आपका सप्लाई डिपेंड करता है. ओके तो चलिए देखते हैं आपको ये डिटर्मिनेंट्स कितने समझ में आए. देखिए तो जरा, प्रिडिक्ट योर रिएक्शन टू द फॉलोइंग सिचुएशन इन डिसाइडिंग अबाउट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ पैक्ड फूड यू विल सप्लाई. आपको डिसाइड करना है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में मैं कितने यूनिट्स भेजूंगा. गवर्नमेंट बैंड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू सप्लाई. गवर्नमेंट ने अचानक आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उस पे बैन लाया. बीच में आपको याद होगा मैगी पे बैन आया था ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा. सो आप क्या करोगे? व्हाट विल बी योर रिएक्शन? आई विल डैश सप्लाई, इंक्रीज और रिड्यूस. रिड्यूस जाने दो, आई विल स्टॉप द सप्लाई, नहीं तो इलीगल हो जाएगा ना. कौन से डिटर्मिनेंट ने काम किया यहाँ पे आपके डिसीजन के पीछे? आई गिव द एग्जांपल, गवर्नमेंट पॉलिसी, राइट? इन दिस वे यू हैव टू गिव द आंसर. अब सेकंड देखिए, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वेंट अप इन द मार्केट. प्राइस बढ़ गई, क्या करोगे आप? आई विल इंक्रीज. और प्राइस अगर कम हो गई, नेक्स्ट वन आई विल रिड्यूस द सप्लाई. तो इन दोनों केस में कौन सा डिटर्मिनेंट आपने कंसीडर किया? Price of a commodity. Price of a commodity, correct. Raw material cost of that product increased. Raw material cost ही बढ़ गई, तो will you increase the supply at same price or will you reduce the supply? Reduce. Reduce. सर मुझे प्राइस तो वही मिल रही है ना, तो why should I increase my supply? कौन सा डिटर्मिनेंट था यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्राइस ऑफ अवर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 50%. हमारा जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, लेट्स से मैं कोका कोला बेचता हूँ, पेप्सी वाले ने सेलिंग प्राइस 50% बढ़ा दी. तो मुझे प्राइस के बारे में नहीं, मुझे बताइए मैं ज्यादा क्वांटिटी भेजूं या कम भेजूं? व्हाट डू यू थिंक? More. यू शुड सप्लाई मोर सर. उन्होंने अगर प्राइस डबल कर दी है या 50% से इंक्रीज कर दी है, तो लोग कोका कोला या उनका प्रोडक्ट कम करके आपके प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे. सो यू शुड गो फॉर इट. सो इंक्रीज. यहाँ पे हमने क्या देखा? कॉम्पिटिटर्स मूव्स. गवर्नमेंट बैंड अवर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट. अपने कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट बैन हो गया, वेरी गुड, तो अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचो. जैसे जब मैगी बैन हुआ था तो पतंजलि की मैगी बहुत ज्यादा बेची गई थी, राइट? तो गवर्नमेंट पॉलिसी. लेबर फोर्स टू प्रिपेयर द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल. वर्कर्स ही नहीं मिल रहे सर, सब भाग गए कोरोना से डर के. इन दैट केस आई विल हैव टू रिड्यूस माय सप्लाई. अगेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नॉट अवेलेबल. Packed food products are not preferred by consumer in winter, the current season. I will reduce my supply. कौन सा फैक्टर अफेक्ट करके गया? Seasonal changes. So these are different factors which affect the supply, called as determinants of supply, right? तो अभी तक हमने देखा सप्लाई क्या होता है और सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं. अब हम देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई सप्लायर का बिहेवियर एक्सप्लेन करता है. क्या होगा एक सप्लायर का बिहेवियर? First, again, assumption ceteris paribus, other things being constant. क्या-क्या things constant है? Price of related goods constant है. It is assumed that no change in price of factors of production constant है. Technology वही है जो हम पहले यूज कर रहे थे. Government policy में कुछ change नहीं हुआ है. Other factors जो है जैसे fashion या weather conditions सब constant है. ऐसा assume अगर किया तो क्या लगता है आपको? Supplier प्राइस इंक्रीज के साथ सप्लाई बढ़ाएगा कि कम करेगा? विल द सप्लायर इंक्रीज द सप्लाई विद इंक्रीज इन प्राइस? Yes, increase. Yes, of course he will. So is there inverse relation or direct relationship between supply and price? Direct. It's a direct relation. प्राइस बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गया. प्राइस कम हो गई, सप्लाई कम हो गया. It's a direct relation. Exactly. So let's see. Other things being equal, the supply of a commodity expands with the rise in price and contracts with decrease in price. It means that there is a direct relationship between price and supply of a commodity. The reason for law of supply is that with an increase in price, the profit element also increases. ऐसा क्यों करते हैं आप? प्राइस बढ़ने के बाद आप ज्यादा क्यों सप्लाई करते हो? कॉमन सेंस है, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया. And if my profit is increasing, I will supply more goods. Therefore, supplier increases the supply and the profit reduces with decrease in price. Naturally, the supply also decreases. So, कैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप है? जैसे देखिए प्राइस बढ़ रही है 10, 20, 30, 40, सप्लायर खुश हो रहा है 50, 60, 70, 80, उसने सप्लाई बढ़ा दिया. So upward moving from left to right indicates the direct relationship between price and supply. डायरेक्ट का मतलब होता है दोनों बढ़ रहे हैं, प्राइस भी बढ़ेगी और क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, राइट? Give it a thought. Draft 5 conclusions from the above supply schedule and supply curve. क्या-क्या 5 conclusions निकल सकते हैं यहाँ से? सब conclusion number 1,
सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आया पहला कंक्लूजन। और क्या कंक्लूजन हो सकता है बताएंगे? इफ यू सी दिस सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, परफेक्ट। फर्स्ट, व्हाट इज सेकंड? चलो मैं आपको हिंट देता हूं, आप बताइए। रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस इज डैश। Direct. डायरेक्ट। ये आया थर्ड, सॉरी सेकंड। थर्ड कंक्लूजन क्या होगा? With increase in price, supply will increase, and with decrease in price, supply will also decrease. So that's a upward sloping curve because both are going on the same direction. Anything else? Anything would you like to contribute? Okay, तो सोचिए इसमें क्या 5 कंक्लूजन्स होंगे और मुझे कल के शेड्यूल में जरूरत है। So यहाँ तक हमने देखा लॉ ऑफ सप्लाई। क्या देखा हमने? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, with the increase in the price, the supply will go up. And with decrease in price, the supply will go down. Okay, तो चलिए अब यहां से आगे हम बढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, जैसा हमने डिमांड में भी देखा था। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन वर्सेस इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है। जैसा हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि जब प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज होता है तो जो होता है उसको कहते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। लेकिन प्राइस कांस्टेंट है फिर भी डिमांड बढ़ गई या कम हो गई, जैसे मेरा इनकम ही बढ़ गया तो डिमांड मैंने बढ़ा दी, दैट इज कॉल्ड एज इंक्रीज एंड डिक्रीज। सो जो प्राइस की वजह से होता है वो होता है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए देखते हैं। In the chapter demand analysis, we have already seen that there is a technical difference between increase versus expansion and decrease versus contraction. The same theme is applicable in case of supply also. Increase in supply. Here the supply of commodity increases due to change in determinants of supply other than price. कैसे बढ़ गया? Let's say मुझे ऐसी खबर किसी ने दी कि जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं शायद उस पे बैन आ सकता है, तो अभी तक तो नहीं आया है, तो मैंने बोला सारा माल निकाल दो, कुछ भी मत रखो। मतलब प्राइस तो उतनी है लेकिन फिर भी मैंने सप्लाई बढ़ा दिया। सो प्राइस इज कांस्टेंट बट सप्लाई आई हैव इंक्रीज्ड इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन सप्लाई। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड स्पेशल सब्सिडी ऑन आवर प्रोडक्ट। गवर्नमेंट ने स्पेशल बोला कि चलो इस महीने में आप जितने यूनिट्स बेचोगे ना उस पे 10% गवर्नमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी सब्सिडी, बिकॉज मे बी दैट्स अ नेसेसिटी रिक्वायर्ड बाय ऑल। तो मैं खुश हो गया, चलो यार गवर्नमेंट से सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब होता है गवर्नमेंट से हेल्प, तो वो अगर मुझे पैसे गवर्नमेंट दे रही है एडिशनल तो चलो, इसलिए मैंने प्राइस उतनी थी फिर भी सप्लाई बढ़ा दिया। इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन सप्लाई। तो वो ऐसा दिखेगा, देखिए प्राइस कांस्टेंट है लेकिन आपका जो सप्लाई था वो आपने बढ़ा दिया। दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन सप्लाई। फ्रॉम S0 से S1, that is increase. It is not expansion, it is increase. Sorry, the wording is wrong. It should be increase. Next, decrease in supply. Here the supply of a commodity decreases due to change in determinants other than price. In simple words, decrease in supply even though price is same. Price same है लेकिन फिर भी मैंने सप्लाई कम कर दिया। कब? गवर्नमेंट चार्ज न्यू टैक्सेस ऑन दिस प्रोडक्ट। मैंने बोला नहीं यार, पहले ही इतनी मारामारी चल रही है और अब ये गवर्नमेंट ने नया टैक्स लगा दिया है, आई एम डीमोटिवेटेड, मुझे ये प्रोडक्ट बेचना ही नहीं, अभी मैं माल अभी यहाँ से आगे सप्लाई नहीं करूंगा। सो डिक्रीज इन सप्लाई इवन इफ द प्राइस इज सेम। देखिए प्राइस कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई डिक्रीज हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, सो जब प्राइस कांस्टेंट होती है फिर भी सप्लाई बढ़ता है, दैट इज इंक्रीज। प्राइस कांस्टेंट होती है फिर भी सप्लाई कम हो जाता है, डिक्रीज इन सप्लाई। तो आप ऐसे देख सकते हो, ये देखिए जब प्राइस उतनी थी फिर भी आपका सप्लाई बढ़ गया, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई, और जब प्राइस उतनी है फिर भी आपने सप्लाई कम कर दिया ड्यू टू एनी अदर रीजन, डिक्रीज इन सप्लाई। दिस इज द समरी ऑफ बोथ। अब देखते हैं एक्सपेंशन वर्सेस कॉन्ट्रैक्शन। यू नो इट वेरी वेल। जब प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ जाएगा दैट इज एक्सपेंशन, कि प्राइस बढ़ गई, आई एम मोटिवेटेड, आई एम हैप्पी, मैंने सप्लाई बढ़ा दिया। प्राइस कम हो गई, आई एम डीमोटिवेटेड, आई एम नॉट हैप्पी, सप्लाई कम हो गया। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। When the supply of the product shows some changes directly in connection with the price of the same product prevailing in the market, then the result can be expansion or contraction. पहले देखते हैं expansion. Here the supply increases due to change in price only. Price change हुआ इसलिए supply change हुआ है. In simple words, the other determinants are constant. Government policy same है, सब कुछ same है, लेकिन price बढ़ गई, I am motivated to supply more. So price increased, quantity supply भी increase हो गया, that is rise हो गया. The term is called as expansion of supply, other determinants constant है। और प्राइस डिक्रीज हो गई तो मैं डीमोटिवेट हो गया, मैंने क्वांटिटी डिमांडेड नहीं क्वांटिटी सप्लाइड कम कर दिया, इट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ये देखिए क्या हुआ, पहले D1 मैं सप्लाई कर रहा था, सॉरी D1 S1 वाज माय कर्व, यहाँ पे मैं सप्लाई कर रहा था, प्राइस कम थी,
प्राइस बढ़ गई तो मैंने सप्लाई भी बढ़ा दिया, सो दैट इज व्हाई इट इज एक्सपेंशन। मैं डी की जगह पी लिख दूंगा सो दैट इट विल बी प्राइस। सेम वे प्राइस कम हो गई तो मैं डीमोटिवेट हो गया, मैंने सप्लाई भी कम कर दिया, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सो इन दिस वे जब प्राइस बढ़ने की वजह से, डोंट वरी आई विल मेक इट P1 P2, सो P1 से लेके P2 प्राइस बढ़ गई तो मैंने सप्लाई बढ़ा दिया, इट इज एक्सपेंशन। P1 से लेके P3 प्राइस कम हो गई, आई एम डीमोटिवेटेड, मैंने सप्लाई कम कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन। सो दिस हैपेंस ड्यू टू चेंज इन all the change in price of the commodity, but other factors are constant। तो हम क्या याद रख सकते हैं, ये देखिए सेम है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई मींस जब प्राइस और क्वांटिटी दोनों चेंज हो रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्शन मींस प्राइस और क्वांटिटी दोनों कम हो रहे हैं। और इसको कंपेयर करें इंक्रीज और डिक्रीज से, तो प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी बढ़ गई, और प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी कम हो गई, डिक्रीज। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ expansion versus contraction and decrease versus increase in supply. So in this way these concepts are not same, these are different concepts, you should always remember. So ये था आपका change in quantity supplied due to price and other factors. ओके तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, चलिए फिर से एक बार आज का जो हमने देखा है उसको समराइज करते हैं। सप्लाई एनालिसिस में हमने देखा सप्लाई इज द क्वांटिटी वी हैव सप्लाइड एंड नॉट एक्चुअली सोल्ड, इट्स अ फ्लो, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग माल जाता है और उसके लिए आपके पास स्टॉक होना चाहिए। सप्लाई होने के लिए पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने प्रोडक्शन करना चाहिए, फिर वो माल आपके पास आएगा और फिर सप्लाई आपका पूरा होगा। सो अदर व्हाट आर द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स, हमने सारे डिटर्मिनेंट्स देखे, जैसे प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जितना टेक्नोलॉजी अच्छा है प्रोडक्शन ज्यादा होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी, then availability of factors of production and other factors। फिर हमने देखा कि law of supply क्या कहता है, other things being constant, that is ceteris paribus, the things equal to the supply of a commodity expands with the rise in price and contracts with the decrease in price, means when the price of the commodity goes up the supply increases, and when the price of commodity goes down supply is also reduced। फिर हमने देखा ये अपवर्ड मूविंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। फिर हमने इंक्रीज एंड डिक्रीज का डिफरेंस देखा कि जब प्राइस कांस्टेंट होती है लेकिन फिर भी आप किसी रीजन से आपके क्वांटिटी में फर्क पड़ता है, बढ़ जाती है, इट इज इंक्रीज, और जब किसी भी रीजन से सेम प्राइस पे आप सप्लाई कम कर देते हो, जैसे गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस लगा दिए, इट इज डिक्रीज। और वही हमने देखा कि जब प्राइस की वजह से आपका सप्लाई चेंज होता है तो इट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो इन दोनों का डिफरेंस हमने देखा और आज हमें इतना ही देखना है, सो दैट हम कल आगे बढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या है और वो कैसे सप्लाई आपका बिहेव करता है, दैट विल गो थ्रू इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन ऑफ सप्लाई एंड आई विश कि जितना आपको नॉलेज मिला है उतने आप अच्छा एमसीक्यूज में उसको कन्वर्ट करोगे और यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स फॉर दिस, क्योंकि अल्टीमेटली आई रिपीट आपको अल्टीमेटली एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देनी है, तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि मल्टीपल चॉइस की तरफ आपको हर रोज बढ़ना है। उसके लिए एक सिंपल सा रूल है, हर एक कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत डेंजरस फॉर्मेट भी हो सकता है, क्योंकि अगर छोटी छोटी कंसेप्ट पूछ ली तो आपका नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो नॉलेज बेस्ड लर्निंग कीजिए, मगअप मत कीजिए, यही सिंपल सा फंडा है टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज इन CS, ET या CA फाउंडेशन, जहां पे भी MCQ फॉर्मेट में ही करना। ओके, चलिए नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। थैंक यू।